زلزلہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو کبھی بھی کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی حصے کو تباہ و برباد کر سکتی ہے اور اس کے چند منٹ بعد ہی زندگی موت کا منظر پیش کر دیتی ہے۔ آخر یہ زلزلہ ہے کیا اور یہ کیسے آتا ہے؟ ارتھکویک یا زلزلہ ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس میں زمین کے مختلف پلیٹس اور یا سالڈ ماسز ہیں جو ادھر سے ادھر آہستہ آہستہ موو کر رہے ہیں، اور اس کے موومنٹ کی وجہ سے وہ آپس میں رگڑ کھاتے ہیں اور ٹکراتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور رگڑ کھاتے ہیں تو وہ کبھی کبھی سلپ بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ سرکتے ہیں تو زمین پہ جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔ ارتھ بیسیکلی ہمارا جو ہوتا ہے وہ پلیٹ ٹیکٹونکس کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی ہر جگہ آتے ہیں اور یہ ارتقاء سے آتے آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی سائنس نہیں ہے۔ تو جہاں تک بات ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ بہت کمپلیکس سسمک سٹی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پلیٹ باؤنڈریز جو ہیں وہ آن لینڈ ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں بھی متعدد مرتبہ زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سورۃ الزلزال میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ کو نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ آپ کا رب اس کو حکم دے گا۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرا بھر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ زلزلے ساری دنیا میں آتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں ہر سال 5 لاکھ زلزلے آتے ہیں، جس میں صرف 1 لاکھ زلزلے کی جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ میکسیکو، چلی، پیرو، انڈونیشیا، ایران، پاکستان، پرتگال، ترکی، نیوزی لینڈ، اٹلی اور جاپان میں زلزلے کے ہلکی نوعیت کے جھٹکے سال میں متعدد بار آتے ہیں، لیکن زلزلہ دنیا کے کسی بھی شہر کو لمحے بھر میں اپنی دہشت، موت اور تباہی میں بدل کر رکھ سکتا ہے۔ 11 مارچ 2011، وقت دوپہر 2:46، جگہ جاپان۔ دل دہلانے والا زلزلہ جس میں نہ صرف جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک کو نیست و نابود کر دیا تھا، بلکہ دیکھنے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ریکٹر اسکیل پر 9 کی شدت کا یہ زلزلہ اور تقریباً 1000 کے قریب آفٹر شاکس نے 15,861 افراد کو موت کی وادی میں دھکیل دیا، 6,107 افراد زخمی ہو گئے اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ 8 اکتوبر 2005، وقت صبح 8:52، جگہ مظفر آباد، پاکستان۔ ریکٹر اسکیل پہ 7.6 کے زلزلے نے مظفر آباد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جس میں ایک اندازے کے مطابق 86,000 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 1 لاکھ افراد زخمی ہوئے، جبکہ 4 لاکھ سے زائد عمارات زمین بوس ہو گئی۔ شہر کراچی میں تقریباً 2.5 کروڑ افراد بستے ہیں۔ اس شہر کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور یہ شہر کبھی نہیں سوتا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی کی دشواریوں سے لڑتے ہوئے رزق حلال کما رہے ہیں۔ شہر کراچی تیزی سے موت کے اندھیروں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کراچی ملبے کا ڈھیر بننے والا ہے۔ پاکستان میں 2008-2011 کے زلزلے سے پہلے اور بعد میں بہت سے سائنسدانوں اور ماہرین تعمیرات نے کراچی اور اس کی عمارات کو ایک ٹائم بم کی مثال دی ہے، جو زلزلے کی صورت میں لاکھوں لوگوں کو ابدی نیند سلا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کراچی میں 5 لاکھ عمارتیں غیر تکنیکی بنیادوں پر تعمیر کی گئی ہیں، جو زلزلے کی صورت میں زمین بوس ہو سکتی ہیں، جبکہ 5% عمارتیں تکنیکی مہارتوں کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہیں، جبکہ پورے پاکستان میں صرف 7% عمارتیں درست تکنیکی بنیادوں پر بنائی گئی ہیں۔ بعض اعلیٰ پائے کے ماہرین نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ زلزلے کی صورت میں کراچی کی نصف سے زیادہ عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی۔ زمین کا اندرونی حصہ کم و بیش تقریباً 7 ٹیکٹونک پلیٹس پر مشتمل ہے، جو زمین کے اندرونی نظام کو چلا رہی ہیں، اور شہر کراچی 3 ٹیکٹونک پلیٹس پر آباد ہے: یوریشین پلیٹ، عربین پلیٹ، انڈین پلیٹ۔ ہمارے پاس 3 پلیٹس کا جنکشن ہے جو سمیانی کے پاس آ کر
जॉइंट होता है, जिसमें हमारा बलूचिस्तान जो है वो अरेबियन प्लेट का हिस्सा है और बलूचिस्तान और नॉर्दर्न हिस्सा जो है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, और हम सिंध पंजाब जो है वो इंडियन प्लेट का हिस्सा है। जबकि कराची में सैकड़ों फॉल्ट लाइन्स हैं, जिसमें 9 बहुत वाज़ेह हैं। फॉल्ट लाइन को ज़मीनी फ्रैक्चर भी कहा जाता है। ज़मीनी हलचल के बाद जब वाज़ेह दरार पड़ जाती है तो उसको फॉल्ट लाइन कहते हैं। फॉल्ट लाइन बेसिकली उन्हीं के आप फ्रैक्चर्स कह सकते हैं। जैसे एक बड़ी बाउंड्री लाइन है, फिर उसके क्योंकि इतना बड़ा मास है तो उसके छोटे छोटे जो ब्रेकअप टुकड़े हैं उनको आप फ्रैक्चर्स कहा, यानी फ्रैक्चर्स को फॉल्ट कहा जाता है, जो अर्थ पर होते हैं और डिफरेंट लोकेशन के साथ ऑन द प्लेट बाउंड्री होते हैं। 8-9 एक्टिव फॉल्ट्स हैं जो कराची के इर्द गिर्द हैं। उसमें जो सबसे दूर समझ लीजिए फॉल्ट वो इंडियन गुजरात में है, कोई तकरीबन 150-200 किलोमीटर, और भी ज़्यादा होंगे डिस्टेंस। करीब तरीन जो है वो 50-55 किलोमीटर के फासले पे भी है। अगर कराची में ज़लज़ला आता है तो ना सिर्फ ये शहर खंडरात में तब्दील हो जाएगा, बल्कि सुनामी की ख़तरनाक लहरें यहाँ बची कुची ज़िंदगी को भी बहा ले जाएंगे। अगर गौर किया जाए तो एक हल्का सा झटका भी कराची में मौत का रक्स शुरू कर सकता है। ज़मीन बोस इमारात और अमवात की गिनती तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। हकीकत तो ये है कि साहली पट्टी पर बसने वाले शहरों को ज़लज़ले के ग़ज़बनाक झटकों के साथ सुनामी की बुलंद व बाला और खौफनाक लहरों का भी सामना करना पड़ता है, जो ज़िंदगी के आखिरी निशान को भी तारीख़ का हिस्सा बना देती है। कराची आने वाली सुनामी के दोराहे पर है। आखिर ये सुनामी है क्या? मैरीन अर्थक्वेक जो है समंदरी ज़िलज़िला, जो कि हमारे पानी, समंदर के पानी के नीचे जो रॉक्स होती हैं उनमें जो उनकी प्लेट्स होती हैं उसमें जब मूवमेंट होती है तो उससे एक एनर्जी खारिज होती है जो बाहर आने के बाद किलर वेव को लेके और वो ज़मीन की तरफ बढ़ती है। फोर्स जो कि प्लेट्स की मूवमेंट से जो निकलती है वो तकरीबन 750 माइल फ़ी घंटे की रफ़्तार से वो मूव करती है, और वेव जो होती है ख़ुद उसकी ऊंचाई जो है वो 50 फीट भी होती है। ये तो हैं कुदरती आफात, लेकिन क्या कराची इसके लिए तैयार है? क्या कराची तबाही के दहाने पर है? क्या कराची की इमारत मलबे का ढेर बनने वाली हैं? कराची पर ज़लज़ले का कितना असर पड़ेगा? मुझे ये पता है कि फ़िल वक्त जो मेरी फीलिंग है उसमें नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा, और शायद इतना ज़्यादा हो कि जो हम नहीं चाहें। 8.3 का अर्थक्वेक आ चुका है इन हिस्ट्री, तो हमें मेंटली उस लेवल पे सोच के कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। अगर उस बेस पर अगर आप ये सोचें कि हैज़र्ड कितना होगा, दैट इज़ अनबिलीवेबल। आप हेटी की तरह आप, या आपने क्या कह सकते हैं, मुजफ्फराबाद की तरह आप खुद कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितना हमने सोचा था और कितना एक्सट्रीम इवेंट आ गया। सुनामी की बात कर रहा है, लेकिन अगर साइक्लोन का भी खुदा न खास्ता कोई इफ़ेक्ट हुआ तो ये सारे जो एरियाज़ हैं DHA, क्लिफ्टन और ये दूसरे, ये तकरीबन 10 से 20 फुट पानी के अंदर होंगे। बुलंद तरीन कंक्रीट की इमारतों के जंगल पर ज़लज़ले के खौफनाक असरात देखते हुए हम एक ज़ेर तामीर इमारत का जायज़ा लेने पहुँचे, ताहम हमें कोई खातिरख्वाह जवाब न मिल सका, बल्कि हमें देखकर उनके अवसान ख़ता हो गए और उन्होंने हमसे ऑन कैमरा बात करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ तो पूरी दाल ही काली थी। लेकिन हमने हर ख़तरे को नज़रअंदाज करते हुए इस बिल्डर के अहम रुकन की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली। खैर ये जो भी कह लें, हैं तो फिर भी बिल्डर माफिया। मेन होती है इसमें स्टील बाइंडिंग की बहुत मतलब वो चीज़ काउंट होती है। इसकी मुझे पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि बस इसका हम लोग जितना हमें इंजीनियर अप्रूव करता है कि भाई इतना स्टील डालना है, हम इतना स्टील डालते हैं, वो आके फिर उसको चेक करता है, इसके बाद फिर वो भराई होती है। हमारे पास की बुक्स होती हैं जो KBC में हम जमा भी कराते हैं। इसके अलावा तो मतलब और कि भाई कितना बर्दाश्त कर जाएगा ये मुझे आइडिया नहीं है, ये आप जो है SBCA से मालूम करें। ज़लज़ले का दूसरा बड़ा नुकसान शहर के वो पुल साबित होंगे जो हल्की शिद्दत को बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं। इसके अलावा ज़लज़ले की खौफनाक सूरत हाल में गैस की लीकेज और बिजली की तारें बड़ी तादाद में अमवात का बायस बनेंगी। लेकिन अफसोस बाकी मसाइल की तरह
इस अहम मसले को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक तो ब्रिज की अपनी अहमियत है और कुछ ब्रिजेस की अहमियत ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। ब्रिजेस कनेक्टिंग द पोर्ट, ब्रिजेस कनेक्टिंग एयरपोर्ट। अगर आप देखें तो कराची एयरपोर्ट को अगर गौर से देखें तो अब एक नया रास्ता बन गया जो बगैर ब्रिज के है, बाकी तो हर रास्ता ब्रिज के साथ है। और अगर खुदा न खास्ता उस ब्रिज कुछ हो जाता है तो कराची पोर्ट कैन रिमेन डिसकनेक्टेड। इस सारे मामले की तह तक पहुंचने के बाद हमारी हत्युल इम्कान कोशिश थी कि हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के आला हुकाम से मिलकर उनका मौक़िफ़ जान सकें, लेकिन हमें कोई इत्मीनान बख्श जवाब ना मिल सका। बहाने बनाने में ये इदारा यकीनन अवार्ड याफ्ता ज़रूर होगा। आइए सुनते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहानों की तलवार से कैसे कैसे वार किए। जनाब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। जी जनाब, मैं काशिफ सरमद बात कर रहा हूँ न्यूज़ 1 टीवी से। अच्छा जी, आपका अपॉइंटमेंट चाहिए था या आपके किसी कंसर्न स्पोक्समैन का या स्पोक्स पर्सन का अपॉइंटमेंट चाहिए था? बिल्डिंग्स के हवाले से आपका इंटरव्यू करना था जनाब। ये जब तक हम किसी चीज़ को कह नहीं सकते, बता नहीं सकते अगर डीजी साहब ना हो। डीजी साहब इज आउट ऑफ स्टेशन। जी जी, तो कोई सर कोई मीडिया कोऑर्डिनेटर होगा, कोई स्पोक्स पर्सन होगा? मैंने अर्ज किया ना, ये तमाम परमिशन ऑफ डीजी होता है। तो डीजी साहब जब होंगे तो आप उनसे इंटरव्यू कर लीजिएगा या जिसको वो कहेंगे वो आपको इंटरव्यू दे देंगे। तो उस वक्त तक आपके किसी मीडिया कोऑर्डिनेटर से हम बात नहीं कर सकते? नहीं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हमारे ऐसे है नहीं। अच्छा जी, तो उस वक्त तक उनका कोई नायब नहीं है जो हमें जवाब दे सके? नहीं, ऐसा इस तरह के वो तफवीज़ करके नहीं गए अपने। अच्छा सर, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, अगर कोई सरबराह जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो होता है। नहीं, बाकायदा वो तो लेता है, वो तो हमने डिसीजन नहीं ली। चाहे गवर्नर साहब जाते हो तो वो लेते हैं, स्पीकर साहब जाते हो तो नायब स्पीकर साहब लेती हैं। जी जी। ऐसे ही वहाँ शहर का चेयरमैन वो तो लेता है, वो तो हमने डिसीजन नहीं ली। अच्छा जी, चलिए जी, आप अपना इसमें करामी बताइएगा प्लीज़ फिर से। जी, आपका इसमें करामी पूरा सर। वो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से पहचान सकते हैं, वास्ती मेरा नाम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया वासी साहब। डिक्लेयर कर सकता हूँ कि ये चीज़ें कोई भी हमारे यहाँ बिल्डिंग कोड्स का फॉलोअप नहीं है। हालांकि मैंने केडीए के बिल्डिंग कोड्स का बुक देखा है और उसकी फॉलोअप कहीं भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कहना कि 100% कोलैप्स होगी, दैट इज़ आल्सो रॉन्ग। और ये कहना कि बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, दैट इज़ आल्सो रॉन्ग। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती थी, अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसकी जिम्मेदार है कि वो इसको मॉनिटर करेगी। अब बिल्डर और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो जिम्मेदारान हैं उनकी आपस की मिली भगत होती है और मैं नहीं समझता कि वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। इमारत बना रहे हैं वो ऑपरेशनल बेस OBE के बेसिस पे नहीं है कि उसमें सेस्मिक की तबाही का हमने उनको सेस्मिक प्रूफ बनाया है। हमारी जितनी हाई राइजेस बन रही हैं कराची में या जो इंस्टॉलेशंस हैं फैक्ट्रीज़ की, उसमें ये फैक्टर जो है रिस्क फैक्टर को काउंट नहीं किया जा रहा। हमने पूरी कोशिश की कि आप तक दुरुस्त हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। फ़ैसला आपका है कि गिरती हुई दीवार को धक्का देने में क्या एक हाथ आपका भी है या फिर आज से तब्दीली का पक्का वादा है। हुकूमत को चाहिए कि फ़िलफ़ौर हतमी और काबिल अमल कानून तश्कील दिया जाए जिससे महफूज इमारतों की तामीरात हो सकें और किसी नागहानी आफत में कम से कम नुकसान है।